Very good morning, students. Welcome to our class of mathematics. And I hope you are very good. And today you are here in the classroom, and I hope the maximum students are watching this video, right? And all are interested and all are energetic to do the mathematics, right? So today we are discussing the mathematics of class 8, and this was the chapter number 9, algebraic expression and identities, right? So today we will deal with the exercise 9.5 sorry, and 9.4 we have completed in the last video lecture, and I hope you also have got the PDF of the exercise 9.5, right? And today we will see the very interesting part of your chapter, that is the questions based on identities. As you can see on the screen, I have written everything about the chapter and the exercise that today we are going to deal with, right? So question based on identities are available in the exercise 9.5, and to understand that question and to learn the method how to do that questions, we have to first learn the identities, right? So I will see you right, and I will show you the identities, right? So you can see the identities on the screen, right? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं identities हैं यहाँ पर, right? You can see that identities, identity 1, identity 2, identity 3, right? All are available here, identities, right? So you can see this is the first identity, a plus b whole square, right? A plus b whole square, that is equal to a square plus 2ab plus b square, right? And this is the identity number 2, that is the a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, right? And this is the identity number 3, that is a square minus b square as equal to a plus b, in another bracket there is a minus b, right? Now you can see the identity number 4. Identity number 4, x plus a in the another bracket x plus b, that is equal to x square plus in bracket a plus b multiply x plus a b, right? तो ये जो हैं चार आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं, और इन चारों आइडेंटिटीज़ के बेस पे ही हमको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? सो जस्ट राइट डाउन दिस आइडेंटिटीज़ इन योर नोटबुक, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दैट आइडेंटिटी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, राइट? सो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होना चाहिए, राइट? इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न as soon as you are doing the questions, so that will be learned automatically, right? So don't be worry about that कि identities याद करना बहुत difficult होता है, how to remember that. So this is not the question, right? But how to use this identity, this is the main question, right? So let's do the questions of the exercise. First of all, I want to show you the exercise 9.5, right? This is the first question of the 9.5. Here you can see there are the 10 questions are available, and what they are saying that use a suitable identity to get each of the following products. So simply what they are saying that you have to multiply these brackets, right? यहाँ पर ये जो आपको questions दिए हैं 1, 3, 5 ये सब दिए हैं, and here are the 5 questions. Here you can see this is the first, second, third, fourth, in this way these all questions are given, and you can see they need to find the product. But as you know that in the previous exercise we were directly multiplying the brackets, binomial with the binomial. You can see all the expressions, all the algebraic expressions are given in the form of the binomials. So we have to find the product of the binomials by using the identity. अब तक हम जो product कर रहे थे उसमें हम identity use नहीं कर रहे थे, but in this exercise there is the compulsory part that you have to use the identities. Don't multiply the brackets directly, right? So come to the point, and we will take the question number 1, that is the x plus 3 and x plus 3. There are the two same type of the bracket are given, both the binomials are same, and we have to find the product, right? तो इसका product find करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर question को लिख लेते हैं. Suppose if we start from that, तो यहाँ पर मैं question लिख देता हूँ पहले. तो आपका यहाँ पर question number 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं दैट इज इनटू द रोमन x plus 3, राइट? एवरीथिंग I will be write on the board
एंड x प्लस 3, राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। सो यू कैन सी बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, सो वी कैन राइट इट एज द x प्लस 3 होल स्क्वायर. Many students are asking, right, that we have the 4 identities and how we recognize that in which question which identity we will use that. So this is not the problem. First of all, you have to observe the structure of the question, right. आपको question जो दिया रहता है उसका structure देखना है, उसका structure किस identity से match हो रहा है. Suppose if we see this question on the screen, right, so x plus 3, the bracket is repeating 2 times. So there is the sign of the multiplication in between that. So if we multiply that, so we will get this one. So you can compare the structure x plus 3 whole square. So you can find that it is matching with the a plus b whole square, right. It is matching with that, right. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो आपको identity वाला part बताया था, this identity number 1, you can see this is the identity first. So यहाँ पर आप देखेंगे ये जो structure है, it is matching with the structure of this given question. यहाँ पर ये जो question है इससे मैच हो रहा है, right. So x plus 3, right, x plus 3 whole square that is matching with the a plus b whole square, right. इसीलिए यहीं से हमको पता पड़ता है कि हमको यहाँ पर किस question में क्या identity यूज़ करनी है, right. Okay, so हम इस question को solve करके देख लेते हैं, right. If we solve this question, so we will get the answer, राइट. तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या रिकॉग्नाइज किया है कि हमको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है एंड विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी वी हैव टू यूज, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द आइडेंटिटी x प्लस सॉरी दैट इज द a प्लस b, राइट, a प्लस b, राइट, होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, राइट. सो यहाँ पर अब हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन को लिखना होगा, राइट. व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज द x प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट. ये हमारा क्वेश्चन है, x प्लस 3 होल स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी वी कैन चेंज दिस ब्रैकेट. अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी वी कैन चेंज दिस ब्रैकेट x प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, राइट, वी स्टार्ट विद द प्रीवियस, राइट. मैं यहाँ से शुरू से स्टार्ट करता हूँ. सो आइडेंटिटी अब आपको मालूम पड़ चुकी है, राइट. आइडेंटिटी के आधार पे हम इसको आसानी से कर सकते हैं. सो आई नीड स्पेस, सो आई कैन इरेज ऑल दिस, राइट, एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज द x प्लस 3, राइट, होल स्क्वायर. राइट इट प्रॉपरली. whenever you see the video, just keep the pen and copy with yourself, so you can continue with me, right. आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. सो हम स्ट्रक्चर में इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, राइट, ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू कितना है, एक्स, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ द बी दैट इज द 3, राइट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज द 2a, and the value of the b is 3. So in this way we can write, and the value of the b is 3, so we can write the b square, that is the 3 square. इस तरीके से हम इसको लिख देंगे. I hope you are getting my point, right. And what would be the answer, x square, right. And if we multiply these values, right, x multiply 2 multiply 3, so we will get 6x, right. And if we multiply 3 into 3, so I will get 9. सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये एग्जैक्टली हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, राइट. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट. तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर. नाउ वी विल डू द अनदर क्वेश्चन. यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं. सपोज यू कैन सी हियर, दिस इज द एक्सरसाइज. सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, वो मैं यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ. सपोज इफ़ वी टेक द फोर्थ वन, राइट. ये फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, राइट. सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं. एंड इफ वी राइट द क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज दैट 3a, राइट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, राइट. यू अंडरस्टूड ऑल दैट. 3a अपॉन 1 अपॉन 2, राइट. दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट इज ऑल्सो द सेम, राइट. यहाँ पर आपको देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, right, it is based on the identity number 1, because if you see
the structure, so we can write 3a minus 1/2 whole square, right? So अगर आप इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को अगर क्लियरली देखें, so this structure is matching with the identity number 2, right? Identity number 2 हमने देखा था a minus b whole square, right? सो ये तो हमारा यहाँ से प्रॉब्लम खत्म हो गया कि कहाँ हमको किस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 ये है, तो इसका स्ट्रक्चर a माइनस बी होल स्क्वायर इसके साथ मैच हो रहा है, राइट? तो हमको यहाँ से क्लियर आइडिया मिल जाता है, क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर अब हमको क्या आइडेंटिटी यूज़ करना है। सो प्रॉब्लम इज़ सॉल्व दैट, राइट? ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन ये प्रॉब्लम ये होती है कि हमको आइडेंटिटी सर हमको याद है, लेकिन किस क्वेश्चन में हमको क्या आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से खत्म हो जाती है। सो मैक्सिमली इफ़ यू सी द क्वेश्चन नंबर 1, सो आइडेंटिटी नंबर 1 एंड 2 कैन बी यूटिलाइज्ड, राइट? ओके, सो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, राइट? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था वो ये दिया हुआ था, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर हमको अब अगर हम लिखें इसको तो इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। सो आइडेंटिटी आपको याद है a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. So we can convert the structure of the question. So the value of a, that is 3a, the value of a that is 3a and the value of b that is the 1/2, राइट? यहाँ पर हमको सबसे पहले आइडेंटिटी के हिसाब से a क्या है और b क्या है ये डिसाइड कर लेना ज़रूरी है। तो a क्या हो जाएगा 3a and the b is 1/2, राइट? So we can write 3a that is the a square, तो 3a होल स्क्वायर, यहाँ पर 3a को आपको पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो 3a स्क्वायर इस तरीके से लिख देते हैं, सो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, राइट? तो यहाँ पर आपको 3a स्क्वायर यानी ये कंप्लीट a है, यहाँ पर ये जो 3a है ये पूरा a है, राइट? तो 3 को आपको अलग नहीं रखना है और a को अलग नहीं रखना है, राइट? नाउ इफ़ वी सी, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आता है, यहाँ पर आता है माइनस का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, राइट? ab, सो a की वैल्यू आपने देखा यहाँ पर 3a है, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ द b इज़ 1/2, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रखेंगे, right? So clearly you can see that there is the sign of the multiplication, so we can cancel out this 2 with this 2, so the remaining is 3a into 1, so 3a into 1 that would be 3a, right? And the b square that is the 1/2 whole square, right? यहाँ पर मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है इसलिए आप थोड़ा यहाँ पर समझ लेना, this is the a square, this whole that is the 2ab minus 2ab, sorry, this is the minus 2ab and this is the b square, right? अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गया। नाउ इफ़ आई इरेज दिस वैल्यू, सो द आंसर वुड बी, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमने 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर में हमको 3 का भी स्क्वायर करना है, a का भी स्क्वायर करना है। सो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, राइट? एंड हियर माइनस, यहाँ पर हमने 3a और 1 का मल्टीप्लीकेशन किया, सो इट विल गिव अस 3a, राइट? प्लस यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, राइट? एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, राइट? सो हियर वी गेट द फ्रैक्शन दैट इज द 1/4। तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, राइट? इसको इरेज कर लीजिएगा आप, राइट? मेरे साथ नोट करते जाइए ताकि जो जो भी वैल्यू मैं इरेज कर रहा हूँ वो आपके पास नोट हो जाए पहले से ही, राइट? सो द फाइनल आंसर विल बी 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट? सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर फिनिश कर लिया है, राइट? अब हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसे कि मैं फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, राइट? तो सपोज आई कैन टेक द क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, राइट? तो ये हम यहाँ पर ले सकते हैं, राइट? चलिए तो इसको मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है a स्क्वायर, राइट, प्लस b स्क्वायर, एंड हियर यू कैन सी अनदर ब्रैकेट माइनस a स्क्वायर, राइट, प्लस b स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है? नाउ we can see the format of the question. So again we have the two binomials and in the first binomial we can see that a square plus b square, right? ये तो एक simple हमारा binomial है। The question is about the second bracket, right? Question जो है यहाँ पर क्योंकि माइनस a स्क्वायर आ गया है
तो हम यहाँ पर क्या करें, तो सपोज इफ़ वी राइट बी स्क्वायर फर्स्ट, राइट, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर इस ए स्क्वायर को हम अगर हम पॉजिटिव कर दें, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस माइनस ए स्क्वायर को आपको पॉजिटिव कर देना है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको साइन चेंज करना है तो अगर हम ए स्क्वायर का साइन चेंज करेंगे तो बी का भी करना कंपलसरी है यहाँ पर, राइट। तो आप ए का जो साइन है आपने क्या चेंज किया, आपने इसको पॉजिटिव बना दिया, तो बी को हम क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, राइट। नाउ द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन बिकम लाइक दिस, राइट। क्वेश्चन अब जो है इस तरीके का हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है किस तरह का हो गया है, विच दिस क्वेश्चन, द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज matching with which type of identity. So you can see that we have learned the identity number 3, right, that is the a square minus b square, that is equal to a plus b, right, and multiply with a minus b. You can see, you can compare the format of this question with the identity number 3. देखिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर identity number 3 पे। identity number 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये रही identity number 3। तो आइडेंटिटी नंबर 3 से ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो मैच करता है। सो हियर वी कैन यूज़ द आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिख रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है एंड वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू दिस फॉर्म, राइट। समझ में आ रही है आपको बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो राइट हैंड साइड के तरह से दिया हुआ है और हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है, राइट। तो इसको कर लेते हैं अपन, यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर वी कम टू द क्वेश्चन, राइट। हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, वी कैन सी द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन हियर, राइट, ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी इज मैचिंग विद दिस, दिस इज द a प्लस बी एंड दिस इज द a माइनस बी, राइट। सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व दैट कि क्वेश्चन को देखने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या आइडेंटिटी यूज़ करें, तो इसको भी हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शांति रख के, बहुत ही पेशेंस रख के आपको इसको करना है, राइट। ज़रा भी घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं, राइट। सो कीप पेशेंस, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है हमारे सामने, राइट। और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखेंगे, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे तो पहले में दिया हुआ है वैसे ही लिख लूँगा मैं। दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट, दैट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर वी नीड टू यूज़ द आइडेंटिटी नंबर 3, राइट। आइडेंटिटी नंबर 3 हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो आइडेंटिटी नंबर 3 में हमको क्या कहा गया है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए क्या है, ए स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ बी क्या है, दैट इज द बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम इस हिसाब से लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पावर ऑफ पावर, राइट। ए स्क्वायर जो है उसकी ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है, बट हमने एक और एक्सपोनेंट वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दी है, दोनों में सेम, राइट। सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस एक्सपोनेंट, इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 2, right, if we multiply this 2 by 2, so I will get a raised to power 4, 2 to the 4, minus sign will come as it is, and if we multiply the exponent of the b, so again I will get the 4. So a raised to power 4 minus b raised to power 4, that is the final answer. ये हमारा यहाँ पर final answer होगा, okay friends. So this is the method of the question, and one thing always you have to remember that whenever you do the question, which identity, identity 1, 2, 3, 4, whatever the identity you are using for solving the question, just mention that identity along with the question, right. क्वेश्चन जहाँ पर भी आप लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके राइट हैंड साइड में उसके सामने आपको एक ब्रैकेट बना के वहाँ पर आइडेंटिटी को मेंशन करना है, राइट। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय साइड। आप अगर आपकी बुक के अंदर सॉल्यूशंस देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से दिया होगा, वॉट एवर द क्वेश्चन यू आर डूइंग एंड विच आइडेंटिटी यू आर यूजिंग फॉर दैट, राइट, वो आपको यहाँ पर जो है दिखता रहेगा, ठीक है। आपको लिखना भी होगा, आपको शो करना होगा, राइट। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर लिया है, एंड बाकी के जो क्वेश्चन है आई होप कि अब ये सिखाने के बाद
आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आइडिया हमको यहाँ पर यूज़ करना है। सो आई होप कि आप बाकी के क्वेश्चंस को भी समझ जाएंगे और उसका फॉर्मेट देखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप फॉर्मेट देखेंगे, सो यू कैन यूज़ द आइडेंटिटी नंबर 2, राइट। थोड़ा बहुत मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आइडेंटिटी नंबर जो है 3 यूज़ किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने आइडेंटिटी 1 यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप आइडेंटिटी 1 यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ द साइन ऑफ पॉजिटिव, राइट। एंड इन द क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन यूज़ द आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आप आइडेंटिटी नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप फिर से देखें, राइट, तो यहाँ पर भी आप आइडेंटिटी नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आप आइडेंटिटी नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी 1, 2 और 3 है ना, एक्सेप्ट द आइडेंटिटी 4। यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है वो पूरा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये आप करेंगे। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्लियरली कहा है कि आइडेंटिटी नंबर 4, इस आइडेंटिटी को आप देखिए, यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए इन द ब्रैकेट x प्लस बी एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोग्राम, राइट। सो दे आर गिविंग यू द आइडिया इन द क्वेश्चन नंबर 2 हाउ टू यूटिलाइज द आइडेंटिटी नंबर 4, क्योंकि आइडेंटिटी 1, 2 और 3 जो है उसका पूरा जो मेथड है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कवर कर लिया है। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 दे वांट टू टीच यू अबाउट द आइडेंटिटी नंबर 4, राइट। आइडेंटिटी नंबर 4 को वो आपको सिखाना चाहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट। तो इसको आप करने की जरूर कोशिश कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ से मैं कोई एक क्वेश्चन पिकअप कर लेता हूँ। सपोज आई विल टेक द क्वेश्चन नंबर 6, राइट। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पिकअप करता हूँ जो आप कर सकते हैं, राइट। मुझे लगता है जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, वो मैं यहाँ पर नहीं लेता हूँ। जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम इसको ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम ट्राई करते हैं। आई कैन टेक द न्यू स्लाइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से दिया है, 2a², राइट, प्लस 9, आई हैव द टेक्स्ट बुक, राइट। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में से मैं लिख रहा हूँ 2a² प्लस 9 एंड इन अनदर ब्रैकेट यू कैन सी 2a² प्लस 5। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या देख रहे थे कि ये जो दोनों वैल्यू होती थी, यानी द वैल्यू ऑफ b जो होती थी, है ना, वो सेम होती थी। और यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ a इज सेम, राइट। तो वैल्यू ऑफ a जो है वो सेम है, बट वैल्यू ऑफ b आर चेंजिंग, राइट। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 4 का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है वो आपको मालूम है यहाँ पर, ठीक है। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। आइडेंटिटी नंबर 4, राइट, यू कैन सी दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 4, राइट। आइडेंटिटी नंबर 4, ये आइडेंटिटी नंबर 4 होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे a और b बोथ आर डिफरेंट बट द वैल्यू ऑफ x इज सेम, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेट कर देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, राइट। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये 2a² एंड दिस 2² बोथ आर द सेम वैल्यू, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, राइट, एंड द 9 एंड 5 बोथ आर डिफरेंट, सो 9 इज a एंड द 5 इज b, राइट। सबसे पहले जब भी हम कोई आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो हमको उसके अंदर x, a और b इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो हमको फाइंड कर लेना चाहिए, राइट। उसको हमको क्लियरली लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2a², राइट। x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2a², a की वैल्यू होगी 9, राइट, a की वैल्यू 9 है एंड द वैल्यू ऑफ द b इज़ 5, सो यू मस्ट राइट इट, राइट। आप इस वैल्यूज़ को लिख लीजिए एंड देन हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, ये आपने लिख लिया है। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। सो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले दिया है आपको x²। इफ़ यू केयरफुली सी द आइडेंटिटी सो यू विल गेट दैट x²। तो x की वैल्यू क्या है 2a², राइट। तो 2a² का हमको पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा, सो दैट इज द x² प्लस यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है a प्लस बी, तो a हमारा 9 है और b जो है वो है 5, तो a प्लस बी की वैल्यू हमने रख दी। x की वैल्यू दी है 2a², तो 2a² को हमने यहाँ पर रख दिया,
राइट, एंड फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ a इंटू बी यानी ए बी, तो उसको हम 9 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, वी कैन राइट 9 मल्टीप्लाई 5। तो ये मैंने पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी नंबर 4। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर वी विल गेट 4, एंड इफ वी गेट द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर सो आई विल गेट a रेज़ टू पावर 4, जैसा हमने पहले के क्वेश्चन में किया है, राइट। नाउ वी सॉल्व दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू, सो 9 प्लस 5 and 14 should be multiplied with this 2, right? So 14 2s are 28, right? So this value become 28a square. क्या हो जाएगा ये 28a square plus we have to multiply 9 and 5 ultimately, so 9 5s are 45, right? तो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिली है यही हमारा आंसर होगा, 4a raised to power 4 plus 28a square plus 45, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो आंसर तो हमको मिल चुका है, लेकिन जब भी आप आंसर लिखें तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी है, लेकिन इसके जस्ट सामने आपको जो है आइडेंटिटी शो करना ज़रूरी है, राइट। इस क्वेश्चन के जस्ट सामने आप जो है आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी हैव टेकन द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 लिया था, राइट। तो इसी के हिसाब से आप बाकी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ये सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर हर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x और ये x दोनों सेम है, 3 and 7, द वैल्यू ऑफ a एंड b इज ऑलवेज डिफरेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगेन आई कैन टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर ले लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कैसा होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपन, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, देखिए आप 2xy, राइट, यू हैव 2xy एंड सॉरी नॉट 2xy, xyz, you have the xyz, sorry, x y and z, right, and here you have -4, right, -4 ये out, and xyz, right, and -2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे a एंड b आर डिफरेंट, बट एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ये एक्स वाई जेड जो है ये पूरी जो है इसको हम x कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये पूरा जो एक्स वाई जेड दिया है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है एक्चुअली, बट वी कंसिडर इट एज x इफ वी वांट टू पुट द आइडेंटिटी, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, तो यहाँ पर इसको 2 लिख देते हैं, करते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यहाँ पर मेरी जो x की जो वैल्यू है वो है x y और z, तो इसको मैं कंप्लीट ब्रैकेट में स्क्वायर लिखूंगा, तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन में हम 4 जो होगा, ठीक है, 4, तो 4 को हम -4 कंसिडर करेंगे, तो -4, राइट, -4 है ना। यहाँ पर मैं एक बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, -4 प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा -2, इस तरीके से। ये मेरा क्या हो गया a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, तो a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -2 है, और यहाँ पर x मेरा क्या है, x y और z, ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में रख दिया, और यहाँ पर होगा प्लस ab, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मुझे -4, राइट, -4 और -2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आंसर लिखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ से रब करना जरूरी है, राइट। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यहाँ पर हम x का भी स्क्वायर करेंगे, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम x का स्क्वायर करेंगे, y का भी स्क्वायर करेंगे और z का भी स्क्वायर करेंगे, सो वी विल गेट x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। पहला तो ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। नाउ इफ़ वी सी दिस ब्रैकेट, राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -4 और -2 दोनों ही नेगेटिव नंबर है, राइट। तो इनका हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा -6। यहाँ पर बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 6x y z। तो ये पूरा जो हमने सॉल्व किया है इसकी वैल्यू हमको मिली 6y z, -6x y z।
एंड यहाँ पर -4 और -2 बोथ आर द नेगेटिव इंटीजर, एंड इफ वी मल्टीप्लाई द नेगेटिव इंटीजर वी विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, सो 4 2 ज़ा 8, राइट। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -6xyz प्लस 8, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिली है यही हमारा क्या है यहाँ पर आंसर होगा, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द PDF ऑफ दैट, बट विदाउट यूजिंग द PDF, राइट। बिना PDF को यूज़ किए पहले आप इसको सेल्फ करेंगे ताकि आपका एक आइडिया जनरेट हो, आपको क्वेश्चन करने की जो है आपको एक इंस्पिरेशन मिले, आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आए, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इंक्रीज़ हो। इसलिए आप थोड़ा इसको रफ बुक में पहले करके फिर फाइनली आप इसको फेयर बुक में लिखेंगे। जैसे मैं क्लासरूम में आपको बताता रहता हूँ कि पहले रफ बुक में आप लिखिए फिर उसको आप फेयर कीजिए, राइट। तो ये आप करेंगे। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट। आपको यहाँ पर इनका स्क्वायर फाइंड करना है। यू कैन सी b-7 होल स्क्वायर, x + y + 3z होल स्क्वायर, 6x स्क्वायर -5y होल स्क्वायर, 2/3m + 3/2n होल स्क्वायर, 0.4p - 0.5q होल स्क्वायर, 2xy + 5y होल स्क्वायर, राइट। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है, आपको क्वेश्चन को रीड करना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। यहाँ पर 6 एक्सप्रेशंस आपको दी हैं, एंड बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन चूज what kind of identity we have to use here, because we have only 4 identities। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 4 आइडेंटिटीज़ हैं और उन्हीं का हमको यहाँ पर यूटिलाइजेशन करना है, राइट। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में, राइट। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, राइट, इस क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फॉर्मेट है वो तो अब आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में आप इसको काफ़ी बार कर चुके हैं। तो a - b होल स्क्वायर आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 2 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट अगर आप देखें तो आइडेंटिटी नंबर 1 से रिलेट है ये, राइट। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 1 यूज़ करना है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सो द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विद द आइडेंटिटी नंबर 2 a - b होल स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 1 यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख रहे हैं a - b होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं a + b होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 को अगर आप प्रॉपरली समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया है, आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन को मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर एग्री विद दैट तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकता हूँ, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको करके भी बता सकता हूँ, राइट। तो इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन सो यू कैन कमेंट मी, राइट। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये क्वेश्चन आपको PDF में भेज दूंगा, तो इसको अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर सकते हैं। बट आई होप कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यू हैव द लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू कैन डू दैट, राइट। बी पॉजिटिव एंड आप आराम से इसको कर सकते हैं, राइट। वी विल मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं। ऑल द क्वेश्चंस हैव द डिफरेंट फॉर्मेट। सो सपोज इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट इज a² - b² दैट इज द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 4 एज वेल एज द आइडेंटिटी नंबर 2 दोनों का ही यहाँ पर हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। सो सपोज यहाँ पर हम एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको करके देखते हैं, राइट। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है a² - b² एंड इन द ब्रैकेट देयर इज द होल ब्रैकेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर a² - b² का फॉर्मेट जो है आइडेंटिटी नंबर 4 से मैच होता है, सॉरी आइडेंटिटी नंबर 3 से मैच होता है। इट इज़ मैचिंग विद द आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 में हमने देखा था a² - b², राइट। या मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, राइट, हियर, राइट। यू कैन सी दैट आइडेंटिटीज़ सारी हमारे पास हैं।
सो आप देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, तो ये इसको ही उन्होंने ब्रैकेट में रख दिया है, देखिए आप, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही उन्होंने ब्रैकेट में रख दिया है, एंड इट इज़ ऑल्सो मैचिंग विद दिस, राइट। अगर मैं इस ए को अगर ए स्क्वायर मान लूँ और इस बी को बी स्क्वायर मान लूँ, तो ये फॉर्मेट भी यहाँ पर मैच हो रहा है। तो आइडेंटिटी नंबर 2 और 3 दोनों का ही हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर लेंगे, राइट। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, वेयर इज द क्वेश्चन, राइट, हाँ यहाँ पर, दिस इज आवर स्लाइड। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखने की यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं, तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 4 को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। आई एम यूजिंग द बिग ब्रैकेट, राइट, बिग ब्रैकेट भी यूज़ कर सकता हूँ और इवन आई कैन यूज़ द करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट ले लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले मैं इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ए माइनस बी, दैट इज द फर्स्ट ब्रैकेट, एंड अनदर ब्रैकेट दैट इज द ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी, एंड हियर इज द करली ब्रैकेट एंड द होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इफ़ वी सी दैट, राइट, इफ़ वी सी दैट, so we can also use the another identity, that is the identity number 2, राइट। आइडेंटिटी नंबर 2 को अगर हम यूज़ करें, राइट, तो एक तो आंसर ये हो गया आपका आइडेंटिटी नंबर 4 के हिसाब से आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 2 का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 2 का अगर यूज़ करें तो हम इस ए स्क्वायर को ए मान लेते हैं और बी स्क्वायर को बी मान लेंगे। तो इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज द 2ab, प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस एक्सपोनेंट वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड, राइट, सो a रेज़ टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट, एंड हियर आई विल गेट द b रेज़ टू पावर 4, both the exponent value get multiplied and we will get a raised to power 4 minus 2a square b square plus b raised to power 4। तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, राइट। तो दोनों ही मेथड जो है वो राइट है। हमने जो पहली आइडेंटिटी यूज़ करी वो भी राइट है और ये जो आइडेंटिटी यूज़ करी दोनों ही राइट है। तो दोनों ही आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बट आपको यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगानी होगी वो आपकी आप आंसर शीट में देख लेंगे। तो जो आंसर आपको वहाँ पर दिया है, सपोज आपको ये आंसर दिया है, सो यू कैन पुट द आइडेंटिटी नंबर 2, राइट। एग्जामिनेशन में अगर आप आइडेंटिटी नंबर 2 या आइडेंटिटी नंबर 4 कुछ भी यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी द राइट, ये हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पर और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कौन सा हम क्वेश्चन कर सकते हैं, you can see I can pick up the question number 5 because there is also the decimal number and the format of the question is also very different, right। तो इसको हम यहाँ से पिकअप करते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नई स्लाइड पे। Now I can write the format of the question। क्वेश्चन नंबर 4 में 5th क्वेश्चन है, राइट। सो द क्वेश्चन इज दैट 2.5p माइनस 1.5p, राइट, सॉरी नॉट द p, इट इज q। यहाँ पर p और q ये दो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किए और इसको रख दिया है उन्होंने ब्रैकेट में होल स्क्वायर, राइट। और अगला जो ब्रैकेट है माइनस, नीचे लिख रहा हूँ, राइट, दैट इज द 1.5p माइनस हियर इज द 2.5q होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल साफ है, यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मेट दिख रहा है क्वेश्चन का, दोनों ही ब्रैकेट जो हैं इट इज़ मैचिंग विद द आइडेंटिटी नंबर 2। तो आइडेंटिटी नंबर 2 के हिसाब से हम यहाँ पर सबसे पहला जो ब्रैकेट है ये जो दिख रहा है आपको 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर a क्या हो गया हमारा 2.5p और b क्या हो गया 1.5q। यहाँ पर आपको 2.5 और p इनको अलग अलग नहीं करना है, राइट। यहाँ पर भी 1.5 और q दोनों को साथ में a मान लेना है। इसको इस कंप्लीट वैल्यू को पूरा a मानना है और इस कंप्लीट वैल्यू को पूरा b आपको कंसिडर करना है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी व्हाट वी कैन राइट 2.5p होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख लेंगे और a हमारा क्या है 2.5p, ये a हो गया, एंड b इज 1.5p, सॉरी q, दिस इज द q, एंड हियर वी विल गेट द b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या होगा 1.5q होल स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, राइट। नाउ फाइनली वी कैन राइट द आंसर, राइट। अब हम इन ब्रैकेट्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करने से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा,
राइट। अगर हम ये 2.5 का स्क्वायर करें, इफ वी स्क्वायर द 2.5, सो 2.5 इज कंसिडर एज द 25, राइट। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 को हम डेसिमल अगर अप्लाई करें तो 6.25 लिख सकते हैं। तो 6.20, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर करना है, p का भी स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी। माइनस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2.5p एंड 1.5q। तो 2.5p और 1.5q को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको फाइनल वैल्यू जो भी आपको आएगी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2.5 और 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमको क्या मिलना चाहिए, राइट। 2.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई करें, सो सपोज इफ आई कंसिडर इट एज द 15, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा। और 15 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू हमको यहाँ पर मिलना चाहिए, 15 5 द 75, 7 इज कैरी एंड 15 2 द 30, 30 और 7 37। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगी, इफ आई पुट द डेसिमल अगेन, सो आई विल गेट 3.75, और 3.75 को अगर मैं डबल करूँ तो 3.75 को डबल करने से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए। तो 2 5 ज़ा 10, 0 आ जाएगा, कैरी इज़ 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, कैरी अगेन 1 आ गया, ठीक है। एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 1 दैट इज द 7। तो यहाँ पर ये 7.50 हो जाएगा एंड हियर इज पी क्यू, राइट। ये p और q ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, राइट। चलिए अब इस वैल्यू को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, राइट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको पॉज करके ठीक से समझ भी सकते हैं। तो ये वैल्यू का मुझे वैल्यू जो मिला है 7.50 PQ। नाउ द नेक्स्ट इज 1.5 होल स्क्वायर, राइट। तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे, सो इफ वी कंसिडर द 1.5 इज 15, सो द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, सो हम इसको 2.25 लिख सकते हैं, 2.25 Q स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द दिस स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा 6.25 p स्क्वायर माइनस 7.50 PQ प्लस 2.25 Q स्क्वायर, राइट। यू कैन मैच दिस आंसर विथ योर आंसर शीट, सो डेफिनेटली यू विल गेट द राइट आंसर, राइट फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास 8 क्वेश्चन हैं, बट all the 8 questions is not possible to include into the first video, right। तो इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर, राइट। पार्ट 1 में हमने 9.4 कवर किया, पार्ट 2 में हमने 9.5 का आधा पार्ट कवर किया और 9.5 का जो हाफ पार्ट है वो हम थर्ड वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, राइट फ्रेंड्स। So I hope you have enjoyed this video, you have learned lot of things about the identities and how to solve the question based on the identities, right friends. So thank you very much for watching this video, have a nice day.